डिवीजन से होता है ना? नहीं, सेल डिवीजन तो देखो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म होगा सेल डिवीजन से ही डिवाइड करेगा। एक ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, तो आपका और कुशाग्र का कहना है इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, तो ऐसा क्यों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में क्यों होता है? हाँ कुशाग्र बताओ बेटा। As the name suggests that sexual reproduction has sexes like male and female, and in asexual reproduction, the name suggests that there is only one sex. There is only one parent, है ना? That's what you mean? Yes, ma'am. Biparental. Excuse me, ma'am. Actually, asexual reproduction. Yeah, we are actually discussing regarding one very important thing, that is that asexual reproduction did take place mainly in unicellular organisms. Now, what is the reason? What may be the reason? है ना? तो सृष्टि, would you like to define this? Ma'am, the reason can be because the unicellular organisms only have one cell and they cannot specialize the cell for reproduction. There are other processes to be gone through. Very good. That's it. So this is what I mean to say, that all the three of you what you have said that like they are made up of a single cell. And for sexual reproduction, what you need to produce gametes, you need to have a proper system. They did not have so, because they are made up of only one cell. That one cell is doing all the function, right? So though they do not have the luxury of making gametes and then gamete ka fusion okay syngamy. So let us start with the class, and we are going to proceed with the topic of reproduction. But when we are talking here about the reproduction, we are talking regarding the reproduction in plants, and then later on we'll be moving on to reproduction in animals. As you know that reproduction जब हम बात करते हैं plants में, तो plants animals के मुकाबले कहीं ज्यादा simple organisms होते हैं। तो simple organisms जो होते हैं वो mainly किस तरह से divide करेंगे? तो mainly asexual reproduction के द्वारा reproduce करते हैं, right? जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था यहाँ पे natural way of vegetative propagation in plants, है ना? तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मैसेजेस लिख रहे हैं, ढेर सारे। तो मैं आप लोगों से कुछ और बातें यहाँ पर डिस्कस करते हुए फिर हम इसको कैरी करेंगे कि क्या डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स सी दैट जब हम यहाँ लिखते हैं क्रोमोसोम नंबर रिमेन अनचेंज, अदम्य प्रताप, क्रोमोसोम नंबर रिमेन अनचेंज। दिव्यांशी सिंह, क्रोमोसोम नंबर रिमेन अनचेंज. What does it mean? Which type of cell division are we referring to? हाँ बिल्कुल ठीक है आदम में, very good. Divyanshi, it is mitosis. Very good. Very good. There is no reductional division. Garima Singh or Jianshi Chawla, what is a reduction division? What does happen in a reduction division? Ma'am, in which the chromosome number become less when they are when reproduction takes place. Okay, the chromosome number becomes less or reduced. So how much? What is the percentage of its reduction? Half. Ma'am, 50%. 50%. That means to say, if there were 4 chromosomes in the parent cell, then the gamete will have only 2 chromosomes. So it will get reduced to half. Right? That's what you mean, Jianshi? Yes, ma'am. Right. So vegetative, however, vegetative propagation जो है plants में, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें तो mitosis हो रहा है, उसमें mitosis हो रहा है, क्रोमोसोम के नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा, सेम रह रहा है, और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें वो क्या कर रहा है, इसमें वो सिंपली अपना वही नंबर मेंटेन कर रहा है जो उसका सोमेटिक सेल कर रहा है, कोई गैमीट नहीं बन रहा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, कोई इस तरह से काम नहीं हो रहा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब हमने नेचुरल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था रूट, लीफ और स्टेम से, है ना? तो ये बताइए जरा मुझे मनस्वी, रूट, लीफ, स्टेम और फ्लावर, ये 4 चीजों के नाम मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो रूट, लीफ, स्टेम और फ्लावर में क्या अंतर है? व्हेन इट कम्स टू रिप्रोडक्शन, इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है आपके हिसाब से? Ma'am, leaf. Leaf. Why? Ma'am, because they cannot reproduce. Because leaf can reproduce. Vegetative propagation हम last time जहाँ खत्म किए थे ना,
वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स शायद हम लोग डिस्कस नहीं करें, तो ये मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स होता है। तो मनस्वी अब बताओ, रूट, लीफ, स्टेम और फ्लावर, इनमें से कौन ऑड वन आउट है? आई कैन सी इन द चैट बॉक्स हाउएवर। हाँ दिव्यांशी, अदम्य, दिव्यांशी ठीक है आंसर। इप्सिता राइट आंसर। हाँ बच्चे, मनस्वी बोल बच्चे। Ma'am, flower. फ्लावर, वाई? क्योंकि रूट, स्टेम और लीफ तीनों के तीनों वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स है मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि फ्लावर्स आर द ओनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट। ओके मनस्वी? Yes, ma'am. ठीक है। जब हम लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स की बातों में ब्रायोफिलम नाम की एक लीफ होती है और एक बिगोनिया। इन दोनों ही पौधों में ये काफी देखा जाता है लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब ये है कि जो लीफ होगी उसके मार्जिनल नॉचेस पर कुछ स्पेशल नोड जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे यहाँ आप ये बिगोनिया की लीव्स देख रहे हो। बिगोनिया नाम के प्लांट की ये जो लीव्स हैं, आई जस्ट शो यू हियर। यहाँ क्या हो रहा है, ये जो पत्ती है इसमें ये आप ये कलर देख रहे हो, पिंक सा कलर, ये जहां मैंने ब्लैक डॉट लगाया है, ये मार्जिनल नॉचेस है। तो इसके मार्जिन पर स्पेशल बड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, लीफ बड्स। तो अब ये अगर लीफ बड गिर जाए नीचे और इसे फूड मिल जाए, सब सूटेबल कंडीशन मिल जाए, तो इससे बिगोनिया का नया पौधा उगाए। सही है? ठीक है बच्चे? Okay, ma'am. क्लियर हुई ना बात? Okay, ma'am. हाँ, sorry, I'm so sorry. It is Kalanchoy. I'm so sorry. It is Kalanchoy rather than Begonia. तो हम यहाँ लीफ प्रोपगेशन में तीन के नाम देखते हैं, बिगोनिया, ब्रायोफिलम और कैलेंचोय। हाउएवर तीनों में ही इसी तरह का प्रोपगेशन आपको नजर आएगा, जैसे अभी इसमें दिखाया गया। ठीक है? अभी हम थोड़ा सा आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन की बात करते हैं। आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन, राइट? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन का क्या मतलब होगा? पूर्वांक, अगर मैं कहती हूँ कि आर्टिफिशियली हमें रिप्रोड्यूस, आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन और नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, अंतर किस चीज का है? पूर्वांक। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। एक्सक्यूज मी हाँ मैम। देवेश बोलिए। मैम प्लीज स्क्रॉल अप। हाँ, दैट आई विल बी डूइंग लेटर ऑन। ठीक है, जो रह गया आपका, मैम प्लीज, मैम प्लीज स्क्रॉल अप। Okay, you have to Okay, ask something from there. Yes, बताइए। बताइएगा, कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं, हम उसे सीट से सो नहीं करते हैं। Let's start with the artificial methods of propagation. Okay, done? हाँ, आर्टिफिशियल मेथड्स और नेचुरल मेथड ऑफ प्रोपगेशन में किस चीज का अंतर है? पूर्वांक, शिव, खुशी सिंह, what is the difference between natural and artificial methods of propagation? Would you like to define this? देखो बच्चों, आई होप दैट कि आप शायद नहीं कर पा रहे हो अनम्यूट। आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड। तो जब कहीं पर नेचुरली नहीं हो रहा है और उसमें हमारा इंटरफियरेंस हो रहा है, वो हो जाता है आर्टिफिशियल मेथड। तो जब हम रिप्रोडक्शन में प्लांट के हेल्प कर रहे हैं, हम उसमें अपना इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो इसे हम आर्टिफिशियल मेथड कहेंगे। जैसे आपने कई बार सुना होगा कटिंग। जैसे मैं किसी के घर गई और मुझे बड़ा पसंद आया उसका कोई पौधा, तो मैंने उससे कटिंग मांग ली, ये कटिंग मेथड कहलाया। ये कटिंग मेथड, जैसे लीफ कटिंग्स हम ब्रायोफिलम की, कैलेंचोय की लेते हैं, रूट कटिंग्स हम टैमरिंड की लेते हैं, स्टेम कटिंग्स हम रोज की, शुगर केन की, इन सबकी लेते हैं, राइट? कटिंग का मतलब है हमने एक प्रॉपर पार्ट लिया और उसको कट करके ले गए। अब जैसे शुगर केन है, तो ये रहा शुगर केन, और शुगर केन जो है उसमें बीच बीच में ये जो लाइंस होती हैं, ये है इसकी नोड्स। ठीक है, ये क्या है बच्चों इसकी? यस गाइस, नोड्स। ये नोड्स हैं। अगर हम एक प्रॉपर पार्ट काटना चाहते हैं ना शुगर केन का, जिससे एक नया शुगर केन निकल आए, तो कम से कम इतना एरिया, दो नोड्स के बीच का इतना बड़ा एरिया हमें काटना चाहिए, राइट? तो एज यू कैन सी हियर, अगर मैं
इसे काटना चाहती हूँ, लगाना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसे नोड या नोड के पास के रीजन से काटना चाहिए। अगर इंटरनोडल रीजन से मैं काटती हूँ तो इसे रॉन्ग बोला है, देखेंगे आप यहाँ पर, एज यू कैन सी हियर, राइट। तो स्टेम कटिंग ये रॉन्ग है और ये राइट। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जैसे स्टेम कटिंग करा, ऐसे एक और मेथड होता है, इसे कहते हैं लेयरिंग। अभी जब मैं लेयरिंग समझाऊंगी ना, तो आपको बिल्कुल इमेजिन करके चलना है कि आपके बागीचे में कोई पौधे हैं। मान लीजिए आपके बगीचे में जैस्मिन की बेल लगी है, जैस्मिन की, ठीक है। जैस्मिन जो होता है वो एक बहुत ही खुशबूदार फूल होता है ना? सुना तो होगा नाम जैस्मिन का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने बेल कही है, तो बेल जो होगी, बेल का मतलब क्या है कि उसकी स्टेम कैसी होगी, मजबूत होगी, वुडी होगी, या फिर नाजुक होगी, डेलिकेट होगी? Delicate. तो लेयरिंग मेथड जो है, लेयरिंग मेथड हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मेनली क्लास 10 सीबीएसई में। एक को कहते हैं माउंट लेयरिंग, एक को कहते हैं एयर लेयरिंग। क्या होता है माउंट लेयरिंग में, जो वीक स्टेम वाले पौधे हैं, जो वीक स्टेम वाले पौधे हैं ना, उनको हमने लिया और उस वीक स्टेम को लेके पकड़ के, वीक स्टेम को पकड़ा और वीक स्टेम को लेके नीचे मिट्टी की तरफ झुकाए, ठीक है। तो ये जो है स्टेम, इसको हमने झुका के नीचे ले आए, लोअर ब्रांच। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर एक पेग लगाया, पेग मतलब एक कील जैसा एक होल्ड करने के लिए लगाया। इस पर हमने इसको रोक दिया और फिर क्या करा, इसकी बार्क को रिमूव कर दिया, इसे गर्डल कर दिया। गर्डल कर दिया मतलब इसे हमने छील दिया, बाहर का कैम्बियम जो है इसका, उसको हमने गर्डल करके निकाल दिया, इसको इंजर कर दिया, इस पार्ट को मान लीजिए, ठीक है। अब जिस पार्ट को हमने इंजर करा है, यहाँ पर पैक करके लगा दिया है, ये पार्ट मान लीजिए ये वाला पार्ट था, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, इसके ऊपर लगा दी, डाल दी मिट्टी, सही है, यहाँ लगा दी मिट्टी, एक माउंड बना दिया मिट्टी का और उसको छींटे देके पानी मार दिया। सही है, समझ आ रही है मेरी बात? Yes, ma'am. ठीक है, मतलब एक ऐसा पौधा नहीं आया, मैं फिर से बताती हूँ। ऐसा समझ लो, दो पौधे हैं, एक है मान लो आपने ले लिया, एक है गुआवा, ठीक है, एक है गुआवा और एक है जैस्मिन। गुआवा जो होता है उसका पूरा एक पेड़ होता है, उसकी टहनियां मजबूत होती हैं, हाँ या ना? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. जब टहनी मजबूत होगी, ऐसी मजबूत टहनी है, तो उसको मैं अगर झुकाऊंगी तो टूट जाएगी ना? Yes, ma'am. तो उसमें ये जो मेथड हम माउंट लेयरिंग का कह रहे हैं, ये एप्लीकेबल नहीं है। उसे क्या चीज चाहिए, नाजुक वीक स्टेम होनी चाहिए। तो वीक स्टेम को पकड़ा, झुकाया, नीचे जमीन तक ले गए और एक पेग या कील जैसा लगा के उसको हमने वहां होल्ड कर दिया, मतलब नीचे रोक दिया, जमीन पे रोक दिया। फिर हमने क्या करा, इस स्टेम के बाहर के पार्ट को, जो इसका वुडी पार्ट है, हल्का सा बार्क को छील दिया। हल्का सा छीलने के बाद, डैमेज करने के बाद, हम इस पर मिट्टी का ये माउंड बना देंगे, हल्का सा इस पे मिट्टी से इसको ढक देंगे, इसे कहेंगे माउंड, राइट। इस माउंड को पानी लगाएंगे हल्का, और अब इसको हम छोड़ देंगे, बीच बीच में पानी लगाएंगे। कुछ समय बाद जब हम इस पोर्शन को इसके काट के देखेंगे, तो हम पाएंगे कि इस पोर्शन में जहां हमने छीला था ना, ये रेड वाला पार्ट जो है, इस रेड वाले पार्ट से रूट्स निकल आई हैं। इन रूट्स को हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। क्या कहेंगे, यहां लिखे हैं हम, एडवेंटिशियस रूट्स। हेलो बच्चे, बात समझ में आई इतनी या नहीं आई? Yes, ma'am. अब सुनो, एडवेंटिशियस रूट्स किन्हें कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट किन्हें कहते हैं? एक तो होती है ट्रू रूट और एक होती है एडवेंटिशियस रूट। देखो, रूट हम किसे ट्रू कहते हैं, जैसे मैंने एक बीज लगाया, सही है, जो बीज है उसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट को कहते हैं हम प्लूम्यूल, पी से प्लूम्यूल। दूसरे पार्ट को कहते हैं हम रेडिकल, आर से रेडिकल, सही है। ये प्लूम्यूल जो है, ये शूट बनके, जब हम इसे बीज को बोएंगे, जर्मिनेट होके ऊपर जाएगा, जमीन से बाहर निकलेगा, और रेडिकल से निकलेगा रूट, ये नीचे जाएगा, सही है? Yes, ma'am. है ना? अब मतलब ये है, जो ट्रू रूट होती है वो निकलती है रेडिकल से। किससे निकलती है बच्चों?
रेडिकल से, ठीक है। जब कोई रूट रेडिकल की जगह पौधे के किसी और पार्ट से निकले तो ऐसी रूट को हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। यहां हमने क्या करा, स्टेम को छील दिया। जब हमने छीला, डैमेज करा, तो उस डैमेज पार्ट पर नेचुरली वहां पर जो हॉर्मोन्स होंगे वो हेल्प करेंगे इस रूट को, जो ट्रू रूट नहीं है, एडवेंटिशियस रूट को ग्रो करने में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये रूट्स ग्रो कर गई, मैं इस पार्ट को अलग करूंगी और इसे मिट्टी में जब बोऊंगी, इतने पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, तो इससे एक नया जैस्मिन का पौधा बन जाएगा। समझ आई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का समझ में आ गई सबको? एडवेंटिशियस और ट्रू रूट्स में डिफरेंस समझ में आ गया? दिव्यांश जैन, Yes, ma'am. बोल Ma'am, डाल। please repeat. अभी रिपीट करूंगी, पहले दिव्यांश बताएगा। दिव्यांश, Yes, बोल ma'am. बच्चे, what do you understand by an adventitious Ma'am, root? Ma'am, when the roots are come with the radicals, that is known as the true roots. And when the roots are came from the other part of the ma'am, leaving the radicals, then it is known as the Adventitious root. adventitious roots. What Yes, ma'am. what I mean to say is that जो रूट हम किस पार्ट को कहते हैं, जो कि रेडिकल से निकलता है, तो बीज का जो रेडिकल वाला पार्ट है उससे रूट निकलता है, और प्लूम्यूल वाले पार्ट से शूट निकलता है। शूट मतलब जो ऊपर जाएगा स्टेम वाला पार्ट, रूट मतलब जो नीचे जाएगा। तो रेडिकल से निकलता है रूट, लेकिन जब रेडिकल की जगह किसी और जगह से रूट निकले तो उस रूट को हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट। तो आज का पहला होमवर्क लिखिए। होमवर्क है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय एडवेंटिशियस रूट्स? व्हाट डू यू मीन बाय एडवेंटिशियस रूट्स? इधर आ जाओ। एंड explain how we may initiate their development, यानी हम उनको कैसे विकसित कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो बताया मैंने आपको माउंट लेयरिंग, यू कैन कोट दिस एग्जाम्पल, क्लियर है? राइट? Yes, ma'am. So here I have written some of the examples of mound layering. Can you open it now? Such as strawberry, jasmine, grapevine, raspberry, etc. These are the examples जिनमें कि हम माउंट लेयरिंग कर सकते हैं। इनकी स्टेम्स वीक होती हैं, लेकिन अगर स्टेम हो मजबूत, वुडी अच्छी स्टेम हो, तो हम ये नहीं कर पाएंगे। तब हमें करनी पड़ती है एयर लेयरिंग। उसको भी मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ अभी। I am just going on for your chat session. I'll be repeating the question. Don't worry. Do not worry about that question. I'll be repeating the question. See, I'm just going to show you some very simple examples of the layering here. जैसे यहाँ लेयर दिखाया है, सिंपल लेयर दिखाया है, मतलब सिंपल लेयर दिखाया है कि पौधे को लिया, देखो इसको पकड़ा और जमीन में अंदर इसको रोक दिया, रेड पैग लगाया। रेड क्या है? ये पैग है। ये इससे पैग से मैंने इसको होल्ड करके जमीन के अंदर डाला, जमीन के अंदर डाल दिया, मिट्टी के अंदर डाल दिया। ये सिंपल लेयरिंग हो गई। जब जमीन के अंदर डालने की बजाय मैं ऊपर ही लगाऊंगी और ऊपर इसे एक मिट्टी से कवर कर दूंगी, देखो यहाँ ये वाला नीचे वाला देखिए, माउंड और स्टूल लेयर। तो माउंड या स्टूल लेयर में हमने क्या करा, हमने इसको मिट्टी से जमीन के ऊपर ढका है, तो इसे कह दिया हमने माउंड लेयर, ठीक है, माउंड लेयरिंग, राइट? बच्चों समझ में आई या नहीं? Yes, ma'am. इसको समझ में नहीं आई है, काइंडली आस्क मी टू रिपीट। यस, Kindly repeat. हाँ, आई विल बी रिपीटिंग इट। ओके फाइन। जैसे ऐसे समझो, ये देखो ऊपर एक तो सिंपल लेयर बता रखा है। हाउएवर सिंपल लेयर सिंपली आपके में ऐसे नहीं आता है, आपके में एयर लेयरिंग और माउंट लेयरिंग आता है, आपके में सिंपल लेयर नहीं आता। सिंपल लेयर का मतलब ये है, हमने पौधे की जो नीचे वाली ब्रांच है, ये देख रहे हो बेंड हो सकती है, इसको पकड़ के खींचा, मिट्टी के अंदर डाल दिया, ठीक है, राइट? तो मिट्टी के अंदर घुसा दिया, वहां इस पेग से, रेड कलर के पेग से इसको रोक दिया, राइट? तो एडवेंटिशियस रूट्स ये उगाई है, ये एडवेंटिशियस रूट्स है, ठीक है अक्षता? ठीक है बच्चे? हेलो, राइट? लेट्स प्रोसीड विद द माउंट लेयरिंग।
माउंट लेयरिंग में क्या करा, ऊपर से मिट्टी का ढेर डाला, ठीक है, तो मिट्टी का ढेर ऊपर से डालने पे ये माउंट लेयरिंग बन जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल आ जाता है हमारा किसका, एयर लेयरिंग का। एयर लेयरिंग का मतलब जब एयर में कर रहे हैं, तो एयर में क्यों कर रहे हैं, एयर में तब कर रहे हैं जब स्टेम है हमारी मजबूत, वुडी स्टेम है ना। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि वुडी स्टेम में, जैसे मैंने आपको बताया था गुआवा है, राइट, मेरे पास गुआवा का ट्री है, मुझे उसमें लेयरिंग करना है, राइट, तो लेयरिंग कैसे करूंगी, मुझे उससे नई पौध बनानी है, मैं ये कर लूंगी, लीची गुआवा इनमें कर सकते हैं। तो इनमें क्या करते हैं, ये हमने क्या करा, ये जो ब्रांच थी ये तो ऊपर की ऊपर ही रही, मैंने ब्रांच में से, ये देख रहे हैं आप, ये ब्राउन कलर का जो लेयर है, इसका बाहर का केम्बियम ये रिमूव कर दिया, दिस इज केम्बियम, वुड बाहर का रिमूव कर दिया, ठीक है। केम्बियम को रिमूव करने के बाद मैंने क्या करा, एक पॉलिथीन से इसको मैंने टाइटली दोनों एंड से बंद कर दिया, ये देख रहे हैं, एंड कर दिया, इसको टाई कर दिया, फाइन, और इसको कुछ टाइम तक ऐसे छोड़ दिया, धीरे धीरे इसमें भी रूट्स निकलेंगे, ये भी एडवेंटिशियस रूट्स ही कहलाएंगे। और जब इसमें से एडवेंटिशियस रूट्स निकल आए तो आप इसे काट लीजिए और काट के इस पौधे को पेड़ से अलग कर दीजिए, कहीं और बोएंगे, नया पौधा तैयार है, वाह वाह, समझ आई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बच्चे बोलो बोलो, हाँ बच्चे, Ma'am, how will the plant will get the oxygen and carbon dioxide when it is covered Yes, with a ma'am. polythene? दैट इज, हाँ 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 बोलो बोलो, कंटिन्यू करो। आपका मतलब ये है कि जब हम इसको काटेंगे, केम्बियम छीलेंगे, तो प्लांट ऑक्सीजन कैसे लेगा, हैं बच्चे बोलो। I'm unable to understand actually your question. You can write in the chat box. However, let's carry on with one more question. रेडिकल के अलावा दूसरे पार्ट का नाम है प्लूम्यूल, रिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन एयर एंड माउंट लेयरिंग, एयर एंड माउंट लेयरिंग, ऑलराइट, ऑलराइट गाइस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस वीक का होमवर्क सबने नहीं भेजा है, कुछ ने भेजा है, कुछ को करेक्शन के लिए मैंने बोला है, वो लोग करेक्शन करेंगे, कुछ का चेक हो जाएगा अभी, जैसे आन्या का, और कुछ बच्चों का नहीं हुआ है चेक। बाकी जिन्होंने नहीं भेजा है उनका भी नोटेड है मेरे पास में, दे बेटर न्यू कि वो क्यों नहीं करते हैं होमवर्क, है ना, मेरे मेंशन करने से नाम अच्छा नहीं लगेगा। एयर लेयरिंग को हम बूटे भी कहते हैं, और ये हम ज्यादातर थिक स्टेम के पौधों में करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको छील देते हैं, पॉलिथीन बैग लगा देते हैं, कभी कभी मॉइस्ट कॉटन भी लगा देते हैं कि वो सूख ना जाए, और इस रैप्ड पोर्शन को जो हमने ऊपर आपको दिखाया उसे बूटी कहते हैं। उसके ये मेथड हम ज्यादा लीची, बोगेनविलिया, गुआवा ऐसे ट्रीज में अपनाते हैं। लीची के जो बगीचे हैं हमारे यूपी में, नहीं अब यूपी में नहीं आता, उत्तराखंड में आता है, रामनगर, तो आपने सुना होगा रामनगर की लीची, खाए हो क्या कभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो रामनगर की जो लीची है, वो लीची के बाग, पूरे पूरे बागों में गुटे होता है। If you want to see gute na, you can actually see over there in the orchards of Ramnagar, lychee orchards, right? Let's go on with one more very interesting method of artificial vegetative propagation in plants, that is called grafting, right? What happened in grafting? Grafting एक ऐसा मेथड है जिससे कि आप वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। ग्राफ्टिंग में आप एक की जगह नई वैरायटी कैसे पैदा करते हो, क्योंकि आप दो अलग अलग पौधों को ज्वाइन करते हो। ग्राफ्टिंग इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट बाय जॉइनिंग टू डिफरेंट प्लांट्स। इतनी बात पहले समझ लीजिए अच्छे से। अभी तक हम क्या कर रहे थे, रोज की स्टेम काटी, लगा दिया, बोगेनवेलिया का जो लीफ बर्ड है उसको लगा दिया, तो बिल्कुल पेरेंट प्लांट बनेगा, है ना। अब हमने क्या करा कि इसी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कुछ वेरिएशन पैदा करने की कोशिश करी, तो हमने दो को मिला के मिक्स कर दिया। अब आप यहाँ देखो, इस डायग्राम में पहले देखो, उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ ये जो डायग्राम दिखा रखा है आपको, इसमें आपको दो पौधे दिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला पौधा है ए और ये वाला पौधा है बी। हमने ए पौधे जो है वो, हाँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रोज, गुलाब के फूल।
अच्छा, आप लोगों के घर में किसी के गुलाब लगा हुआ है? Yes, ma'am. ये बताओ किसके घर में गुलाब के बड़े बड़े फूल आते Yes, हैं? ma'am. अरे बड़े बड़े फूल किसके पास आते मेरे हैं? यहाँ। तेरे यहाँ मेरे आते हैं। अच्छा देवेश, जो बड़े बड़े फूल आते हैं, ये आपने कौन सा पौधा लगाया है गुलाब का? देसी है विदेशी? मैम रेड वाला। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम रोज की बात करें तो रोज की, जैसे मेरे बगीचे में जो वैरायटी लगी है वो है देसी। देसी का मतलब ये है कि इंडिजिनस। आपको याद होगा लास्ट ईयर छोटा सा ये टॉपिक आपके सर ने पढ़ाया होगा, इंडिजिनस ब्रीड्स, याद है? Yes, ma'am. इंडिजिनस का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है देसी, है ना, और एक्सोटिक का मतलब होता है विदेशी। तो अब मेरे घर में जो वैरायटी लगी है रोज की, उसमें क्या होता है कि जो मेरा रोज का फूल है उसकी पंखुड़ियां कम होती जा रही हैं, बहुत ही कम पेटल्स आती है। देवेश, जैसे तुम कह रहे तुम्हारा बहुत अच्छा वाला आता है, तो कितना टाइम लगे हुए हो गया तुम्हारे रोज के प्लांट को? मैम 6 months. 6 मंथ हुए, तो अभी नया नया है। तो अभी Yes, जैसे ma'am. नया है, अभी आप इसको वॉच करना, तो देखोगे आप, अगर ये देसी है ना तो धीरे धीरे इसमें पेटल्स का नंबर कम होता जाएगा, राइट? मैम जो पहले था उसमें हो जाता है। अच्छा, अब मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर स्टॉक और स्कियन से हम क्या कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम ग्राफ्टिंग कैसे पौधों में करते हैं? देखो, अगर मान लो मुझे ग्राफ्टिंग करके मेरा देसी पौधा लगा है इसको इम्प्रूव करना है, तो मैं क्या करूंगी? ये लिया मैंने मेरा जो पौधा है ना रोज का, वो मैंने लिया और एक ऐसे स्लैंड करके कट लगा दिया। किसमें लगाया? उसके रूटेड पोर्शन में, मतलब मैंने उसकी रूट ले ली। ये जो रूट वाला पोर्शन लिया मैंने अपने देसी पौधे का, उसको बोला मैंने स्टॉक। क्या बोला? बोलो क्लास 10। Stop. तो स्टॉक इज द रूटेड पोर्शन। कौन सा? रूटेड पोर्शन, रूट वाला पोर्शन। अब दूसरा पौधा लिया मैंने, मान लो रुद्र के पास में एक्सोटिक वैरायटी है गुलाब की, तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छे तेरे तो इतने बड़े बड़े गुलाब आते हैं, तो मुझे एक कटिंग दे दे। तो मैंने क्या करा, इसके स्टेम में से, रुद्र के जो पौधा है उसके स्टेम में से ऐसे स्लैंड कट मारा और इसका स्टेम का पोर्शन लिया, इसको बोली मैं स्कियोन। क्या बोली मैं इसको? स्कियोन। अब मैंने क्या करा, जो स्कियोन है वो क्या करेगा, उस पे स्टेम वाला पार्ट आएगा, यानी कि फ्लावर भी आएगा, और जो स्टॉक है वो रूट लेगा। तो जो स्कियोन है वो मैंने लिया है किस वैरायटी का? एक्सोटिक वैरायटी का, मतलब विदेशी गुलाब लिया है। तो इसके बड़े बड़े गुलाब की वजह से स्कियोन के पास बड़े बड़े गुलाब है, तो मुझे कैसे मिलेंगे? बिग रोज। और स्टॉक की वजह से मुझे क्या फायदा होगा? मैंने लिए इंडिजिनस वैरायटी। तो इंडिजिनस वैरायटी का फायदा ये होता है कि जो रोज है, देसी गुलाब है, उसका जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत बढ़िया होता है, खूब अच्छे से वाटर अब्सॉर्ब कर सकते हैं, तो बड़ा रूट सिस्टम होता है उसका। तो अब जो मैं पौधा बनाऊंगी नया, उसको किसका एडवांटेज है? उसके पास फूल बड़ा है और रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड। बताओ ठीक बात? Yes, ma'am. अब ये ए और बी से ये जो सी बना है, ये सी जो है इसकी जो जड़ें होंगी वो मजबूत होंगी, जड़ों की कैपेसिटी वाटर अब्जॉर्प्शन की ज्यादा होगी और फूल भी आएगा बड़ा। तो ये है ग्राफ्टिंग, जो कि एक आर्टिफिशियल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप इसे घर पे कर देख सकते हैं, इस लॉकडाउन पीरियड में आपको बहुत मजा भी आएगा। डेफिनेटली कीजिए, ट्राई कीजिए, ध्यान दीजिएगा कुछ बातों पे। आप जो ब्लेड या जो भी आप चाकू यूज कर रहे हैं शार्प हो, और स्लैंट काटिएगा कट, और उसको जोड़ने के बाद में अच्छे से टाइट कीजिएगा, और बहुत तेज धूप और बिल्कुल ही अंधेरे में मत रखिएगा पौधे को, देखभाल कीजिएगा और फिर बताइएगा क्या हुआ। ठीक है? Okay, ma'am. ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका होता है। हाँ बच्चे, कोई क्वेरी? Ma'am, I have dropped my question in the chat box. Okay, I'm going to see this. बेटा, why we wrap this? देखो, wrap का मतलब ये है कि हमें इन्हें जोड़ कर रखना है। What I mean to say, like say I have taken 2 right here. Let's take, this is my rooted portion stalk and this is my shooted portion scion, right? अब ये तो कैप है, ये तो कैप इसे फिट हो जाएगा, लेकिन वो जो पौधा है वो कैसे इसमें फिट होगा? तो गिर जाएगा। तो उसको रैप करने का मतलब ये है, वैक्स करने का मतलब ये कि वो दोनों एक साथ ही रहे, जुड़कर चले, so as they both of them grow together. समझ में आ गई इप्सिता ये बात? मेरा क्वेश्चन नहीं था ये। किसका था ये? मैम ये मेरा था। अच्छा, ओके।
इप्सिता, जो आपने गूटे में से क्वेश्चन पूछा है ना, वो हम पॉलिथीन और मॉइस्ट कॉटन लगाते हैं। तो पॉलिथीन में से सनलाइट तो आ रहा है पहली बार, वो हमने पता है क्यों लगाया, जब हम उसे डैमेज करते हैं ना, उसका हम कैम्बियम निकाल देते हैं, तो वो डैमेज जो है इस प्लांट के कुछ पर्टिकुलर ग्रोथ हार्मोन्स को इनिशिएट करता है। वो ग्रोथ हार्मोन्स जो है उन्हें पता लगता है कि डैमेज है कहीं, एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो उस डैमेज को कवर करने की कोशिश करता है और वहां पर रूट्स निकालता है जिससे कि पौधा मर ना जाए। तो इट इज अ काइंड ऑफ सर्वाइवल टेक्निक ऑफ द प्लांट। तो हम उस प्लांट को बुद्धू बना रहे हैं और उससे एडवेंटिशियस रूट्स बनवा रहे हैं। ठीक है इप्सिता? ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, तो आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। मतलब एक्चुअली ये सब चीजें जो मैं अगर आपको बता रही हूँ, आप इसमें से कुछ कुछ छोटा छोटा करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत मजा भी आएगा। और आप ग्राफ्टिंग करने के बाद में अगर एक सक्सेसफुल ग्राफ्ट कर लिया आपने, तो आप अपने पौधे को बड़े शान से देखकर हर बार खुशी महसूस कर सकते हैं। अभी हम इसके लास्ट मेथड पे आएंगे जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। जैसे कि नाम ही बता रहा है, माइक्रो मतलब छोटा। जब बहुत ही छोटे पार्ट से, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, जब छोटे पार्ट से पौधे के हम पूरा पौधा प्रोपगेट करें, पूरा पौधा बना लें, तो इसे हम माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। It is raising of new plants with the help of tissue culture technique. माइक्रो प्रोपगेशन को टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एक पौधा है तो पौधे के जो शूट टिप होती है वो कौन से टिश्यू की बनी होती है? बताओ, कौन बताएगा ये बात? हाँ बच्चे, हाँ लक्षिता, मेरिस्टेमेटिक। ऐसे रूट की टिप किसकी बनी होती है? मेरिस्टेमेटिक अगेन, है ना? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत है कि ये बहुत एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू होता है। तो आप क्या करते हैं इस टिश्यू कल्चर टेक्निक में, चाहे आपने रूट से या शूट से थोड़ा सा टिश्यू उतार लिया, यहाँ से ये टिश्यू हमने थोड़ा सा निकाल लिया, ठीक है? इस टिश्यू को निकाल के हम क्या करेंगे, इस टिश्यू को निकाल के हम इस टिश्यू को यहाँ रखेंगे। देखिए एक मिनट, ये देखिए हमने क्या करा, यहाँ पर ये पौधा है, इस पौधे के इस वाले पोर्शन से, ऊपर वाले पोर्शन से, मेरिस्टेमेटिक पोर्शन से हमने एक छोटा सा टिश्यू ले लिया। ये जो छोटा सा टिश्यू लिया है इसे हमने बोला एक्स प्लांट। सो द पोर्शन ऑफ प्लांट दैट इज यूज्ड टू कल्चर अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड एक्स प्लांट। पोर्शन ऑफ प्लांट दैट इज यूज्ड टू कल्चर अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड बच्चों एक्स प्लांट। व्हाट आई डिड, ये हम लैब में करते हैं। तो लैब में हमने इस एक्सप्लांट को रखा एक इसके न्यूट्रिएंट मीडियम में। मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम में क्यों रखा? कि ये मर ना जाए, इसको फूड मिले। अब ये न्यूट्रिएंट लेके खाएगा, पिएगा, बड़ा होगा, मतलब क्या होगा, इसमें होंगे सेल डिवीजन। क्या होंगे? सेल डिवीजन। कैसे होंगे? माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा? माइटोसिस। 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 हाँ, तो माइटोसिस से ये डिवाइड कर रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32 ऐसे खूब सारे डिवाइड हो गए। पर ध्यान देने की बात ये है कि ये जो एक्सप्लांट है डिवाइड तो कर रहा है, तो इसके डिवीजन से रैंडमली सेल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा, जैसे यहाँ पे पता चल रहा है ना ये रूट है, ये शूट है, ऐसे कुछ नहीं पता चल रहा। तो एक्चुअली में कैलस हम उस पार्ट को कहते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है। सो कैलस इज एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल in which we cannot distinguish between the root, leaf or stem. It is undifferentiated mass of cells in which we cannot differentiate between root, leaf and stem. Clear हुआ बच्चे? Yes ma'am. Yes ma'am. हाँ, तो अब क्या हुआ, हमारे पास में कैलस बन गया। ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो है ये फर्दर ग्रो करेगा, ग्रो करके बनाएगा एम्ब्रॉइड। एम्ब्रियोइड जो है, एक सेकेंड ना, पहले मैं आपको इतना दिखा देती हूँ। तो कैलस क्या है? कैलस के बारे में भी अलग से आपसे पूछा जा सकता है। तो कैलस क्या है बच्चों? कैलस इज एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो एक्सप्लांट के लगातार डिवीजन से बनता है। तो एक्सप्लांट, एक्सप्लांट से कैलस, कैलस से एम्ब्रियोइड, एम्ब्रियोइड से एम्ब्रियो। ठीक है? सही है? मैं इसको एक बार नंबरिंग दे देती हूँ। Yes ma'am. जस्ट अ मिनट। हाँ, is there any kind of connectivity issue today? Yes ma'am. All right, this first one is the explant. Oh my god, again
This first one is the explant, जो कि हमने लिया है टिश्यू कल्चर के लिए. Second one is the callus. Third one is the embryoid. Fourth one is the embryo. And now from this embryo, हमारे इसमें ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में ही plantlet, ये स्पेलिंग गलत है, this is plantlet. छोटी सी पौध बनेगी, नन्ही मुन्नी बच्ची बनेगी. ये नन्ही मुन्नी प्लांटलेट को हम नर्सरी में लगा देंगे और फिर इससे पौधा बन जाएगा, स्टर्डी पौधा, जिसे आप बगीचे में आप जहां उगाना चाहे वहां. ठीक है बात? यस मैम. आपको पता है ये मेथड. अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि ये मेथड जो है, इसके बाकी हमने जितने पढ़े मेथड्स, उनके कंपैरिजन में इस मेथड के क्या एडवांटेज नजर आ रहे हैं? पहले सोचिएगा, एक एक करके रेज योर हैंड्स रिगार्डिंग दिस. व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड? What are the advantages of this method that is called micropropagation or tissue culture? And it's very commonly asked question. Yes. Let's begin, guys. I haven't seen a single raised hand. नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ आया? फिर से बताऊं? हाँ, प्रत्युष, would you like to answer this? Yes, ma'am. बोल बच्चे. To grow more good qualities of plants by using this method can be possible. मतलब आपका मतलब है ह्यूज नंबर ऑफ प्लांट्स. तो अगर मैं इसका एडवांटेज लिखूं कि टिश्यू कल्चर का एडवांटेज क्या है, तो टिश्यू कल्चर का एडवांटेज है कि इसमें पौधे को नुकसान पहुंचाए बिना छोटे से पार्ट से ढेर सारे प्लांट्स बन सकते हैं, है ना? तो एज यू हैव सेड, ह्यूज नंबर ऑफ plants can be formed from a single specimen. और कुछ? मैम स्पेस भी कम चाहिए. स्पेस कम चाहिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया. और कुछ? मैम नेचुरल factors will be removed by this. मतलब the area which is not suitable for a particular plant, we can also grow that plant in that area. नहीं, very good. मतलब not only that area has already been prescribed. But then when it comes to like natural factors, हम इसको in vitro conditions में grow कर रहे हैं, मतलब lab conditions में. So we are controlling it. So we will get an ensured, yield. हमें पता है कि भैया हम तो इसको एक न्यूट्रिएंट भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो हमारे को इंश्योर्ड है, वी आर इंश्योर्ड दैट हमारे को इतने स्पेसिमेंस इसके मिल जाएंगे. ठीक है? तो हमारी यील्ड भी हाई होगी और हमें इंश्योर्ड यील्ड मिलेगी. स्पेस कम चाहिए हमें और ये जल्दी से होता है. सो इट इज अ वेरी गुड मेथड, जो कि बड़े बड़े जो हमारे लैब्स है, CSI लखनऊ वगैरह, वहां पर इसकी सुविधा है. हाउएवर इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे बताइएगा? क्या डिसएडवांटेजेस होंगे? हाँ दिवेश बोलो. मैम कॉस्टली होगा, बहुत कॉस्टली होता है. और मैं और आप कर सकते हैं ऐसे क्या? मैम genetic deformities will also pass from the generation to generation if there is any. हाँ डेफिनेटली, बिकॉज इट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो देखा जाए ना प्रत्युष, जो आपने कहा डिसएडवांटेज, कि जो जेनेटिक डिफॉर्मिटीज हैं, दे विल पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो ये आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी लिख सकते हो और इसमें भी लिख सकते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी मेथड, उसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो भी जेनेटिक डिजीजेस होंगे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होंगे ही. बिल्कुल सही बात. हाँ, लैब्स में होगा और इसमें सीड की जरूरत नहीं है. ठीक बात है देवांश, राइट? और बहुत सारे क्लोन्स बन सकते हैं. तो आप समझ रहे हैं आप लोगों को क्या लिखना है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3. यू हैव टू राइट डाउन अबाउट माइक्रो प्रोपगेशन विद अ डायग्राम and write 2 advantages and disadvantages as well. ठीक है? ठीक है, लिख लेंगे? Yes ma'am. हाँ बेटा, प्लांट वाले पार्ट से जैसे हमने अभी पीछे भी किया है, मैं आपको बता दूं गारंटीड क्वेश्चन आते हैं. हमने अभी तक जितना पार्ट पढ़ा है इसमें से गारंटीड क्वेश्चंस आते हैं. कुछ तो बिल्कुल टिप्स पर हैं. अभी आप सिर्फ अपना नॉलेज बढ़ाओ और थोड़ा एक्सपेरिमेंटल मूड में करो. ठीक है क्लास 10? That was actually all for today's class from my side.